Spermatogenesis का स्टेज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Now we will come to the some of the words or points. इंटरनल एक्सटर्नल टर्शियरी फॉलिकल में आता है या ग्राफिक? स्टार्ट होता है टर्शियरी, अपीयर्ड होता है ग्राफियरी. जोना पेलुसिडा स्टार्ट होता है सेकेंडरी में, अपीयरेंस स्टार्ट होता है टर्शियरी में. जहां पे डिस्टिंक्ट होगा वही हम दिखाएंगे. यहाँ पे तो हम लोग खाली स्टेप्स ही दिखा सकते हैं ना, इसीलिए मैंने अपीयर्ड जहाँ पे वहां पे दिखाया है कि इट इज क्लियरली अपीयर्ड इन द टर्शियरी. तो जोना पेलुसिडा एंट्रम स्टार्ट हो जाता है सेकेंडरी में. ठीक है. तो ठीक है, व्हाट इज द वर्ड एक्चुअली spermatocytogenesis. Then spermatidogenesis. हम डेफिनेशन लिखेंगे राइट साइड में. Spermiogenesis. Spermiation. बाकी spermatogenesis we know that is the total process of formation of sperm, right? Spermatocytogenesis, just see your copy that multiplicative phase and growth phase, ये दोनों के एंड में क्या फॉर्मेशन हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोगोनियन. हाँ, मैंने आपको क्या बोला? आपने मेरा बात को सुना नहीं ध्यान से. मैंने बोला एट द एंड ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव फेज एंड ग्रोथ फेज. आपने खाली मल्टीप्लिकेटिव फेज सुना. प्रॉब्लम तो वही है ना, आपको कुछ बोला जैसे आप सुनते कुछ और समझते कुछ और रिजल्ट निकलता है कुछ दूसरा. So it is actually the formation of primary spermatocyte. It is the process of formation of primary spermatocyte by the multiplicative phase and growth phase. ये दोनों के एंड में फॉर्मेशन होता है. So spermatocytogenesis is the process of what? The multiplicative phase plus growth phase. Spermatidogenesis, the process of formation of spermatid. Spermatid कहाँ से फॉर्म होगा? Now from the secondary spermatocyte. Now spermiogenesis, the metamorphosis or the change, कल हमने बताया था previous class में, the conversion of a spermatid into sperm. And we will discuss today what is the changes actually takes place from conversion of spermatid into spermatozoa. I will discuss today. And what is the meaning of spermiation? This is the word which is frequently asking in the exam. Last 5 years पे कम से कम 2 बार इससे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी स्पर्मिएशन से. इसलिए ये एनसीईआरटी का लाइन है. The final releasing of the sperm from the seminiferous tubule is called as spermiation. The
final releasing of sperm from seminiferous tubule is called as formation. This is a big line, a big word. The questions पे रहता है तो ध्यान रखना उसको. Now we are coming to the hormonal control of spermatogenesis. Hormonal control of spermatogenesis. And regarding the hormonal control of spermatogenesis, I have already discussed with you in the endocrine chapter. So let's make a quick revision of this. This is hypothalamus. That hypothalamus will release the GnRH, that is gonadotropin releasing hormone, which target the anterior pituitary. And anterior pituitary, in response to that, they will secrete two different type of GTH. Another is, first is what? Yes, FSH, second is LH. In case of male, so it is called as ICSH. तो देखो प्रीवियसली मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि सेमनिफरस ट्यूबल के अंदर तीन डिफरेंट टाइप का सेल होता है, जर्म सेल, सर्टोली सेल्स एंड लेडिक सेल्स. हार्मोन है दो, तो FSH टारगेटिंग विच हार्मोन एंड LH टारगेटिंग विच हार्मोन. ने FSH टारगेट करता है both germ cell as well as what? The Sertoli cell. Germ cell directly associated with what? Na? Spermatogenesis. So germ cell directly associated with the spermatogenesis. Sertoli cell actually दो टाइप का चीज काम करता है यहाँ. Sertoli cell secreting a factor and also secrete inhibin. पढ़े हम लोग. This inhibin actually helps in what? Sorry, factor helps in what? Na spermiogenesis. So spermiogenesis. Spermiogenesis हम लोग अभी पढ़े थे, conversion of spermatid into spermatozoa is called as what? The spermiogenesis. तो यहाँ पे देखिए, which is the factor associated with the spermiogenesis? The secreted from the Sertoli cells. तो फिर देखिए spermatogenesis में Sertoli cell का रोल है कि नहीं? Now LH. It's act on Leydig cell or interstitials. And this Leydig cell or interstitial cell will secrete what? Not testosterone. टेस्टोस्टेरोन का भी रोल है कि नहीं स्पर्मेटोजेनेसिस में? तो ये बोलना सही होगा कि टोटल सेमनिफरस ट्यूबल में जो तीनों टाइप का सेल है, तीनों का रोल है स्पर्मेटोजेनेसिस. क्लियर है? ये है फैक्टर और द हार्मोन विच कंट्रोलिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस. नाउ मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बोला था
कि every hormone actually secreted in the body in response to a stimulus only. जब तक स्टिमुलस नहीं आएगा तब तक ये सिक्रेट नहीं होगा. And that is the reason why in most of the cases में हार्मोन हमेशा बैलेंस्ड रहता है बॉडी में, ना इंक्रीज रहता है ना डिक्रीज रहता है, कांस्टेंट रहता है, मेंटेन्ड रहता है. हाउ? ना बाय मींस ऑफ फीडबैक. फॉर एग्जांपल, व्हेन द secretion of the FSH will increase, जब सिक्रेशन ऑफ एफएसएच का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, ये क्या करेगा? इनहिबिन सिक्रेट करेगा, एंड दैट इनहिबिन अल्टीमेटली इनहिबिट द हाइपोथैलेमस एंड इनहिबिट द एंटीरियर पिट्यूटरी. So that will inhibit the hypothalamus to release less GnRH. अगर GnRH कम हुआ तो एंटीरियर पिट्यूटरी FSH LH दोनों कम करेगा कि नहीं? तो अब हम लोग पढ़े थे कि इनहिबिन इनहिबिट FSH एंड LH बोथ, करेक्ट होगा कि नहीं? प्लस डायरेक्टली इट इज इनहिबिटिंग द एंटीरियर पिट्यूटरी टू इनहिबिट व्हाट? ना FSH आल्सो LH. ठीक है, लेकिन LH का जो कंट्रोल्ड है वो खाली इनहिबिट नहीं करता है, टेस्टोस्टेरोन भी करता है. तो टेस्टोस्टेरोन अगर हाई हो गया, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट? ना LH. तो अगर टेस्टोस्टेरोन हाई हो जाता है, then in that case also the high testosterone will also inhibit the hypothalamus and that is anterior pituitary. But here हम लोग इसको पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो अगर लो हो गया तो ये पॉजिटिव करेगा, अगर हाई हो गया तो इनहिबिट करेगा. मैं यहाँ पे आपको नेगेटिव फीडबैक दिखा देता हूँ. दिस राइट, दिस इज नेगेटिव फीडबैक, दिस इज नेगेटिव फीडबैक, this is also negative feedback, this is also negative feedback. So both testosterone and inhibin maintain the hormone in the blood to normalize the quantity of the hormone, especially the testosterone. इसीलिए आप बोल सकते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है कंट्रोल्ड प्रोसेस है कि अनकंट्रोल्ड है? कंट्रोल्ड है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. क्लियर है? So we are coming to the structure of sperm. चलेगा नहीं? ठीक. Structure of sperm. Let's have a diagram of the sperm first. देखिए ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्पर्म, उसका डायग्राम है. And which is the longest?
which is the longest part of this form. The tail, the longest part. पीछे देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस तो होता है बट साइटोप्लाज्म इज एब्सेंट. So now comes to the leveling part of this diagram. This is cholesterol membrane. This is plasma membrane. This is acrosome. The anterior sheath is called as gallia. This is nucleus. The acrosome and nucleus togetherly called as head. Then यहाँ पे आता है neck part. This is middle face. And the last part is tail or flagellum. And this is the longest part. The neck part contains nucleus, gallia के जो next part है that is called as manchet. What is the difference between the gallia and manchet? Gallia actually the anterior sheath. Manchet is the posterior sheath. Acrosome contain sperm lysine. Acrosome contains sperm lysine. Sperm lysine means the lytic enzyme present in the acrosome. Lytic enzymes are three different types, which will break the membrane surrounding the ovum. When the penetration of the sperm will occur into the ovum, that contains the lytic enzyme, which will, that is, break the membrane to penetrate. Three different types. That is hyaluronidase, corona penetrating enzyme, zona lysine. These three collectively called as what? Sperm lysine. मैं आपको फर्टिलाइजेशन में बताऊंगा डिटेल्स. न्यूक्लियस तो आप लोग जानते हैं. दिस इज मेड अप ऑफ व्हाट? ना डीएनए एंड प्रोटीन. दैट इज व्हाई इट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. जो भी अननेसेसरी आरएनए वगैरह है वो सब लॉस हो जाता है.
खाली प्रोटीन रहेगा एंड डीएनए रहेगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियो प्रोटीन. दिस इज द proximal centriole. You know, proximal centriole is a very important structure present in the neck part. इसका function क्या है? Now that will form the first spindle fiber for the first cleavage after the fertilization. बाकी देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे आएगा कि सपोज टू एक स्पर्म आपके पास है, वो स्पर्म से आपने प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल को रिमूव कर दिया. The absence of the proximal centriole will give rise to which of the following event will occur except. समझे? तो दिमाग में होना क्या चाहिए कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल को रिमूव कर दिया है, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का फंक्शन विल नॉट ऑकर. And what is the function of proximal centriole? Form the first spindle fiber for the first cleavage after the fertilization. तो fertilization तक सारे के सारे इवेंट होगा, बट क्लीवेज स्टार्ट नहीं होगा. सब कुछ होगा बट क्लीवेज स्टार्ट नहीं होगा. समझे? क्लियर है? बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है. तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल फॉर्म द फर्स्ट स्पिंडल फाइबर. For first cleavage. Now this is एक्सोनेम. एक्सोनेम यहाँ पे 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होगा मिडिल पीस में. देन यू नो स्पाइरली आपको एक दिख रहा है कि नहीं? That spiral structure is present called as Nevencon. Nevencon actually mitochondria modified to form the Nevencon. So we can write here it is spiral mitochondria. Spiral mitochondria. So which is the powerhouse of this sperm? मिडिल पीस को पावर हाउस बोलेंगे कि नहीं? Because middle piece contains the mitochondria and mitochondria will generate the ATP. That is why Nevencon के presence के वजह से middle piece को हम लोग बोलते हैं power house. This is called as axial filament. And axial filament also with 9+2 microtubular arrangement. I hope आपको डायग्राम समझ में आ गया. I was already told you that during the metamorphosis of spermatid into spermatozoa, there are so many different type of modification occurs. अब क्लियरली ये दिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि स्पर्मेटिड तो राउंडेड स्ट्रक्चर है विथ साइटोप्लाज्म, विदाउट फ्लैजेला, नॉन मोटाइल, राइट? बट आपके सामने फ्लैजेला है. दैट इज स्पर्म में फ्लैजेला प्रेजेंट है. Here that is what na without cytoplasm, motile है. तो what are the structure changes? And that structurally change is called as what? As spermiogenesis. So the event takes place during the spermiogenesis. Complete है क्या? बाहर वाला एक्चुअली वही गैलिया एंड मैंचेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट है. Anterior plasma membrane is called as, or anterior sheath is called as gallia and posterior sheath is called as manchet.
So I'm coming to the next phase. Event during spermiogenesis. Was the maximum cytoplasm lost? जो मिनिमम साइटोप्लाज्म बचा हुआ है, that is from the sheath around sperm. अभी पढ़ा है गैरी एंड मैंचे. Galley and Manchette, these are the sheath present around this sperm, formed from which structure of spermatid? ये जो spermiogenesis हो रहा है मतलब spermatid change into sperm. What event it expresses? The maximum cytoplasm is lost during the spermiogenesis. A minimum cytoplasm will form the sheath around the sperm. Nucleus becomes condensed. Golgi complex or Golgi bodies that will form what? Golgi bodies क्या form करेगा? Acrosome. क्योंकि Golgi bodies secretory activity होता है. Acrosome भी तो secretory है. Mitochondria change into Nevencon. Centriole change into centrosome change into centriole. Centrosome change into centriole. Non-motile or non-flagellated change into motile or flagellated. Spherical change into elongated. So these are the changes during the spermiogenesis. So mostly question will ask you from is Golgi bodies, minimum cytoplasm the sheath में convert होता है, centrosome change into centriole. इस तीनों से questions पूछता है. एंड प्रीवियस पेज में जो स्पर्म का डायग्राम हमने किया था उस डायग्राम में एक चीज आप और जोड़ सकते हैं. ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल था उसके नीचे डिस्टल सेंट्रियोल भी है. अब यहाँ पे छोटा सा डिस्टल सेंट्रियोल भी जोड़ दीजिए. ठीक है. तो डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सोनेम रिलीज होता है. सो एक्सोनेम एंड एक्सियल फिलामेंट ये दोनों कहां से फॉर्म होगा? द डिस्टल सेंट्रियोल. सो डिस्टल सेंट्रियोल विल फॉर्म द एक्सोनेम एंड एक्सियल फिलामेंट. ठीक है. So now we have finished the total spermatogenesis process. We have finished now. Now coming to the next, that is oogenesis. Oogenesis. It is a discontinuous or continuous? Discontinuous.
that is partly in fetal stage, partly childhood stage, and partly during partly after puberty. So I will show you which part is before parturition, that is fetal, which part is during the childhood stage, and which part is being completed after the puberty. So let's continue. This is germ mother cell. और ओवम मदर सेल भी बोल सकते हैं. That is germ cell. The germ cell diploid by means of the continuous mitosis gives rise to the formation of. यहाँ पे माइटोसिस बहुत सारा कंटिन्यूस होगा and result of the continuous mitosis gives rise to the formation of oogonia. वहां पे क्या था स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे क्या हो गया oogonia. And this is the multiplicative phase. Multiplicative phase. Next it is growth phase. As a result of growth phase, the oogonia which is diploid will form the diploid large sized cell called as primary
oocyte। देखो ये प्राइमरी oocyte अभी मियोसिस 1 में एंट्री करेगा। थोड़ा याद करिए प्रीवियस टॉपिक, हमने आपको बोला था कि प्राइमरी oocyte arrested in prophase 1 means this primary oocyte meiosis 1 में ऑलरेडी एंट्री कर चुका है, and this is the right time when the patuation or birth will be occur। ठीक है, मतलब यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया, फिटल स्टेज हुआ कि नहीं। तो प्राइमरी oocyte arrested in prophase 1, so already enter into meiosis 1। This is the time when the maturation of the baby or female baby will be occur, that is in the birth stage। so birth के टाइम में ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, means multiplicative phase and growth phase already completed। I have told you that during the birth each ovary contains how many numbers of, that is primordial cells ना, millions, याद है। and birth से लेके puberty तक, this is actually puberty। तो ये दोनों के बीच में जो गैप हो गया, आप इसको क्या बोलेंगे, चाइल्डहुड बोलेंगे कि नहीं। तो देखो चाइल्डहुड स्टेज में बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं हो रहा है ना, बट होता क्या है ना, डीजेनरेशन ऑफ द नंबर ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल फ्रॉम मिलियंस टू 60,000 टू 80,000, याद आया। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, ना, फॉलिकुलर एट्रिसिया। सो व्हाट इज द इवेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, द नंबर ऑफ द फॉलिकुलर सेल डीजेनरेट, ऐड नहीं होगा, कम होगा। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, इसके बाद और भी रिलेटेड वर्ड आएगा। So during the beginning of the puberty, जैसे ही puberty start होगा, ये meiosis 1 finish होगा। तो meiosis 1 will be completed when the puberty will approach। समझ में आ रहा है कि नहीं, 1 by 1 every month में एक एक प्राइमरी oocyte चेंज होके किस में कन्वर्ट होगा ना, सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte चेंज इनटू सेकेंडरी oocyte। So as it is meiosis 1, so haploid हो जाएगा ये again, and with the result of a very small size cells form is called as what, the first polar body। This is first polar body। Every month में either of the ovary, क्योंकि दो ओवरी है, each ovary will produce 6 secondary oocyte or ovum per year। 6 plus 6 कितना हो गया, 12। समझ में आ रहा है कि नहीं। so each ovary will produce the secondary oocyte in every alternative month, इसीलिए 12 होगा। बात को समझे। तो each ovary will produce how many secondary oocyte or ovum per year, 6। now the meiosis 2 will finish। अभी आ गया meiosis 2। meiosis 2 results into the formation of oocyte, और जिसको हम लोग मैच्योर्ड ओवम बोलते हैं, with the formation of second polar body, and this is also haploid। so this is the completion during the maturation stage, that is adulthood, and this is the meiosis 1 to meiosis 2। ये जो टोसस प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे, मैचुरेशन फेज बोलेंगे कि नहीं।
आई होप आपको समझ में आ गया। लेकिन ये सेकेंडरी oocyte स्टेज के स्टेज में अरेस्टेड है। क्या हमने बात किया था कि सेकेंडरी oocyte ऑलरेडी एंटर इनटू meiosis 2 बट अरेस्टेड इन व्हिच फेज? मेटाफेज 2। जब तक meiosis 2 कंप्लीट नहीं होगा तब तक क्या मैच्योर्ड ओवम फॉर्मेशन पॉसिबल है? एंड व्हेन डिड दिस meiosis 2 will finish? Only when the sperm will penetrate or enter into secondary oocyte, and that is why only in the pregnant woman we can say that practically the ovum will form in case of only pregnant woman. तो pregnant woman इसीलिए प्रेगनेंसी हुआ है क्योंकि ओवम फॉर्म हुआ है। ओवम क्यों फॉर्म हुआ? बिकॉज द स्पर्म हैज एंटर्ड। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में जो ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओवम रिलीज होता है, जो एग रिलीज होता है, वो किस स्टेज में होता है? Secondary oocyte already enter into meiosis 2 and arrested in metaphase 2. And that is why you can see in this diagram, ovum formation, that is ovulation, is a discontinuous process. डायग्राम समझने आना चाहिए, डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी आपको दिख रहा है ना, ये फर्स्ट पोलर बॉडी नॉर्मली एक्चुअली फंडामेंटल कंसेप्ट इज व्हाट? Now during the meiosis 1, the meiosis 1 is a process in which karyokinesis and cytokinesis both occur. Here the karyokinesis is equal. न्यूक्लियस देखिए n फर्स्ट पोलर बॉडी भी n है, सेकेंडरी oocyte भी n है, दिख रहा है? मतलब न्यूक्लियस में कोई कंजूसी नहीं है, इक्वली डिवाइड हुआ है। बट साइटोप्लाज्म जब डिवाइड हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ, पार्शियली यहाँ पे हुआ क्या ना, मिनिमम क्वांटिटी कम्स टू वन साइड एंड मैक्सिमम क्वांटिटी अनदर साइड। तो इन अनइक्वल साइटोकाइनेसिस की इक्वल अनइक्वल, एंड अनइक्वल साइटोकाइनेसिस अगर अनइक्वल हुआ है तो हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि जो रिजर्व फैट है, रिजर्व फूड मटेरियल, दैट इज कॉल्ड एज यॉक। बताया था मैं प्रीवियस क्लास में, व्हाइल द ग्रोथ फेज इज लॉन्ग, while the primary oocyte is comparison to oogonia is so large, because during the growth phase vitellogenesis occurs. Vitellogenesis is a process of synthesis of yolk. जो ओविपेरस एनिमल होते हैं उनके केस में ग्रोथ फेज बहुत ही लंबा ड्यूरेशन होता है। जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग, उनके केस में ये जो ग्रोथ फेज है बहुत ही शॉर्ट फेज है, बिकॉज विविपेरस एनिमल्स में यॉक कम चाहिए। जैसे कि ह्यूमन बीइंग आप लोग पढ़ेंगे अभी कुछ ही मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग एग इज व्हाट ना, एलेसिथल। वर्ड सुने, माइक्रोलेसिथल, मेगालेसिथल, पॉलीलेसिथल, मेजोलेसिथल, एलेसिथल। लेसिथल मींस यॉक। क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मेगा, मैक्रो, मेजो, पॉली, आइस, दैट इज व्हाट ना, एलेसिथल। तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है ना, एलेसिथल। A minimum, almost negligible quantity of yolk. लेकिन जो ओविपेरस एनिमल हो गया, रेप्टाइल हो गया, बर्ड्स हो गया, प्रोटोथेरियन मैमल्स हो गया, उनके केस में लार्ज क्वांटिटी ऑफ यॉक होता है। तो फिर ग्रोथ फेज किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, समझ में आया? Now when the incomplete division और पार्शियल डिवीजन जब होता है साइटोकाइनेसिस का, अनइक्वल होता है, तो मैक्सिमम यॉक विल बी कम्स टू सेकेंडरी oocyte. A minimum yolk comes to what na, first polar body. Almost we can say first polar body is without yolk. The first polar body continue करेगा डिवीजन कि डिजेनरेट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास यॉक है ही नहीं, तो एनर्जी का सोर्स जीरो है। तो इसीलिए फर्स्ट पोलर बॉडी नॉर्मली meiosis 2 नहीं करता है। हम क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का डिस्कशन कर रहे हैं, इसीलिए मैं फर्स्ट पोलर बॉडी का सेकंड meiosis नहीं किया। ये फर्स्ट पोलर बॉडी इज द रिजल्ट ऑफ meiosis 1। फर्स्ट पोलर बॉडी भी meiosis 2 कर सकता है, लेकिन ये कर नहीं पाता क्योंकि इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल ऑलमोस्ट नील है, एज इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग वी आर डिस्कसिंग। बट अगर ये किसी दूसरे एनिमल का होता है, बर्ड्स का, रेप्टाइल्स का, तो मोस्ट पॉसिबिलिटीज आर देयर
if first polar body undergo meiosis 2 again. अगर फर्स्ट पोलर बॉडी meiosis 2 करता है तो फिर से दो पोलर बॉडी फॉर्म हो गए कि नहीं, तो टोटल पोलर बॉडी कितना हो जाएगा 1 2 एंड 3. कितना पोलर बॉडी हुआ 3 हुआ कि नहीं, ये डिवाइड हो जाएगा. ह्यूमन बीइंग में कितना होता है 1 2, बाकी के केसेस में क्या होता है 3, इसीलिए 2 to 3 पोलर बॉडीज. क्या बोलेंगे 2 to 3 पोलर बॉडीज. क्लियर है. Write the point, everyone. Everybody write the points. कंप्लीट हो गया. सुनिए पॉइंट्स लिखिए. देखिए oogenesis process, right everyone? Oogenesis process starts during embryonic development. Oogenesis process starts during embryonic development when millions of gamete mother cell or oogonia are formed within fetal ovary. Next point. No more oogonia formed or added after birth. No more oogonia formed or added after birth. Next point. A large number of primary follicle degenerate from birth to puberty called follicular atresia. क्या हुआ तेरा तबीयत ठीक नहीं है, जाओ, जाना है कहीं पे, जाओ. तो सफोकेशन हो रहा है क्योंकि ये सब बंद करके रखे हैं, थोड़ा सा खोल दो भाई. नहीं खोल दिया, छोड़ो, ठीक. तो क्या लिखे आप लोग, follicular atresia लिखे, which gives rise to only 60,000 to 80,000. Only 60,000 to 80,000 primary follicle left in each ovary. 60,000 to 80,000 left in each ovary. मतलब ये each वर्ड को मैं स्ट्रेस दे रहा हूं, ध्यान रख रहे. पहले मैंने क्या लिखा था, मिलियन इन ईच ओवरी लिखा था, मतलब बोथ ओवरी में कितना होगा ना 2 मिलियन, एंड बोथ ओवरी में कितना प्राइमरी फॉलिकल होगा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. Now 1,20,000 to 1,60,000. ये वर्ड क्वेश्चंस में आता है. नेक्स्ट पॉइंट. In case of human, the first polar body almost contain negligible amount of yolk,
almost contain negligible amount of yolk. So do not undergo meiosis 2. So do not undergo meiosis 2. So in human, it is two polar body form. पर जैसे कि मैं आपको समझाया, एनसीईआरटी में आपका 2 to 3 पोलर बॉडी लिखा है। इसका कारण क्या है कि हो सकता है कि ये फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड करे, those having the yolk quantity is more. क्लियर है? आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2 to 3 पोलर बॉडीज। नेक्स्ट पॉइंट, generally one ovum is released during each menstrual cycle. Generally only one ovum is released during each menstrual cycle by alternate ovary. ठीक है? So 6 ovum per ovary per year. So 6 ovum per ovary per year. अगर कैलकुलेट किया जाए, आपको पूछा गया कि एक फीमेल का supposed to be reproductive period supposed to be 32 years का है। 32 years तो मैं डायरेक्टली बोल दिया। वैसे ऐसे आ सकता है कि मेनार्ड स्टार्ट हुआ 15 ईयर में एंड मेनोपॉज हो गया supposed to be 45 years में। What is the number of ovum produced by that female if the menstrual cycle is occurs in the regular manner? बात को समझे? तो हम लोग काउंट करेंगे कैसे ना, पर ओवरी 6 मतलब पर ईयर 12 इंटू 35 सॉरी 30, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला 45 एंड 15, तो रिप्रोडक्टिव एज कितना हो गया 30, ऐसे करके काउंट करेंगे। सो राइट द वन पॉइंट, सो अबाउट 400 to 450 ova 400 to 450 ova are produced by human female. 400 to 450 ova are produced by human female within entire lifespan. Within entire lifespan of reproductive life. Which is 35 to 40 years. Which is 35 to 40 years. जो 60,000 और 80,000 बच गया वो। कुछ बचता नहीं है, और ये मैं बताऊंगा थोड़ी देर, ठीक है? अभी नहीं, थोड़ी देर में हम बताएंगे। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा तब हम बताएंगे कि मेनोपॉज क्यों होता है, तब हम बताएंगे कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एफएसएच एलएच का रोल क्या होता है एंड हाउ इट इज बीइंग टर्मिनेटेड। थोड़ा सा वेट करिए, हम बताएंगे। Now we are coming to structure of ovum. उसके लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे बताने लायक, हम बताएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ovum. देखिए ओवम का न्यूक्लियस हमेशा एक साइड में होगा,
नॉट इन द सेंटर। जिस साइड में न्यूक्लियस होगा दैट साइड इज कॉल्ड एज व्हाट? एनिमल पोल। ऑपोजिट ऑफ एनिमल पोल इज कॉल्ड एज व्हाट? ना वेजिटल पोल। So when the sperm is entering into the ovum, the which sperm will fertilize with the ovum? The sperm which is penetrate through the animal or vegetal? Short distance होता है। So animal pool के through जो sperm reach करता है, entry करता है, वही sperm ही fertilize करता है। These are actually corona radiata cells. And these are the cells which is called as granulosa cells or follicular cells. And granulosa cells और follicular cells के बीच में यहाँ पे एक cementing substance होता है, and that cementing substance is actually none other than the hyaluronic acid polymer. And hyaluronic acid polymer को अगर आप dissolve कर देंगे, तो ये जो outer layer है, that is the membrane granulosa cells layer, ये dissolve हो जाएगा कि नहीं? The sperm को जब पहली बार entry करना होगा, first which layer will come across to cross that? ना मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा लेयर। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद कौन सा लेयर आएगा? कोरोना रेडिएटा लेयर। उसके बाद कौन सा लेयर आएगा? जोना पेलुसिडा। अब समझे कि हाइलुरोनिक एसिड पॉलीमर विच डिसॉल्व द हाइलुरोनिक एसिड पॉलीमर को जो डिसॉल्व करेगा उसका नाम क्या होगा? हाइलुरोनिडेज। जो कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करेगा कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम। जो जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करेगा जोना लाइसिन। एंड दीज आर द थ्री एंजाइम प्रेजेंट इन द स्पर्म लाइसिन ऑफ एक्रोसोम। हर चीज का कंसेप्ट दिमाग बस ऐसा होना चाहिए कि आपका दिमाग बस कंसेप्ट को ही पहले पकड़े, रट्टा मारने के बारे में बाद में सोचे, तब देखिए मजा आएगा पढ़ने में। दिस इज granulosa cells. This is hyaluronic acid polymer. This is the cells of corona radiata. This is zona pellucida. This is the plasma membrane. And this is the nucleus. जिस साइड में न्यूक्लियस हो जाएगा that side is animal pole. Opposite called as vegetal. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जोना पेलुसिडा सेलुलर और एसेलुलर।
यस, ये क्वेश्चन है। Juna pellucida is acellular without cell, and it is formed of glycoprotein. It is formed of glycoprotein. So Juna pellucida is a glycoprotein acellular layer. कोरोना रेडिएटा तो मैंने क्लियरली लिखा है सेल्स, मतलब सेलुलर हो गया। ग्रैनुलोसा भी सेल्स है, तो ग्रैनुलोसा लेयर दैट इज आल्सो फॉर्म्ड ऑफ सेल्स। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। फिर एनिमल फूल द स्पर्म इसी के थ्रू पेनिट्रेट करता है। कंप्लीट है। कंप्लीट। Now we are coming to the next very important, very important menstrual cycle. Because the menstrual cycle में आपको अभी भी बता देता हूं कि क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक पूरा चैप्टर को कोरिलेट करेगा, प्लस इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसको भी कोरिलेट करेगा। सो एक भी पॉइंट अगर छूट गया, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आप अगर नहीं समझे, दैट इज योर बैड लक कि आपने क्लास नहीं किया, तो आपको समझ में नहीं आया, तो इसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर भी समझ में नहीं आता है, ध्यान रखिए कि आपने ये क्लास नहीं किया इसलिए नहीं समझ में नहीं आ रहा है। So we are coming to the menstrual cycle. So it is a reproductive cycle. It is a reproductive cycle in female primate mammals. मैंने आपको बताया था फीमेल प्राइमेट के अंदर कौन कौन आते हैं, प्राइमेट मैमल्स के अंदर मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। रेस्ट मैमल्स आर कम्स अंडर व्हाट, नॉन प्राइमेट। उनके केसेस में जो साइकिल होता है दैट इज कॉल्ड एज एस्ट्रल साइकिल। नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन कितना है? ड्यूरेशन 28 डेज। आपको पूछा है कि एक फीमेल का डॉट मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन 28 डेज है। कितना क्लेवर क्वेश्चन है, देखिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ ओवम प्रोड्यूस्ड बाय दैट फीमेल within 1 year if there is no pregnancy occurs? क्या बोलेंगे आप लोग? नंबर ऑफ ओवम प्रोड्यूस्ड बाय दैट फीमेल within entire year if there is no pregnancy has been occurred. कितना? प्रेगनेंसी नहीं होगा तो ओवम मतलब यहाँ पे आप सेकेंडरी oocyte समझेंगे। मैं बार बार आपको बोला हूं
यहाँ पे ओवम मतलब सेकेंडरी ओसाइटी आप समझेंगे। अगर वैसे टाइप का क्वेश्चन देगा कि ओवम एंड सेकेंडरी ओसाइट को स्पेसिफाई किया है तो अपना दिमाग लगाइए। 12 मैंने बोला ये क्लेवर क्वेश्चन। 365 डिवाइडेड बाय 28 कर दीजिए, 13 निकलेगा। ऑप्शन में 13 दिया होगा, आप करके आ जाएंगे कितना, क्योंकि आपके दिमाग में है वंस इन अ मंथ। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 28 डेज। भैया वो काउंट कर लीजिए कितना निकलेगा, 13। ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। हम लोग 28 डेज लेके काउंट कर रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑपरेटेड, it is comprises of two different cycles in two different sites simultaneously. इस पॉइंट का मतलब भी समझिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब क्या है, इट इज ए पीरियडिक साइकिल and that cycle is occurs in the two different site. It is the comparison of two different cycle in two different sites simultaneously. Ovarian cycle, uterine cycle. बात को समझे? तो हम लोग यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल को एज ए होल पढ़ने से पहले मैं आपको ओवरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल दोनों एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको क्लैरिटी आएगा कि हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं ल्यूटियल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? वो ओवुलेटरी साइकिल के लिए, दैट इज ओवरी साइकिल के लिए ऑपरेटेड होता है, यूज होता है, कि यूट्राइन साइकिल के लिए यूज होता है। सो लेट्स सी, फर्स्ट वी आर कमिंग टू द ओवरियन साइकिल। Ovarian cycle, which is takes place in ovary. अब आप लोग एंडोक्राइन चैप्टर थोड़ा सा याद करिए। Which hormone control the ovarian cycle and which hormone control the uterine cycle? Ovarian cycle is under the control of FSH and LH, मतलब pituitary hormone. Uterine cycle is controlled by estrogen progesterone, means ovarian hormone. मतलब ओवारियन साइकिल को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी एंड यूट्राइन साइकिल को कंट्रोल करता है ओवरी। यहां पे होगा तो यहां पे भी होगा। अगर ओवारियन साइकिल अटक गया, यूट्राइन साइकिल नहीं होगा। तो ओवारियन साइकिल कंट्रोल्ड बाय FSH and LH, means pituitary hormone. तो ओवेरियन साइकिल में 3 फेजेस होता है। नंबर 1 फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? ग्रोथ ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल, यस और नो? That growth of the ovarian follicle means primary change into secondary, change into tertiary, change into Graafian follicle. ये change होता है। And जैसे ही ये follicular development होगा, growth होगा, estrogen का secretion start होगा कि नहीं? So secretion of estrogen. So what is the event takes place in the follicular phase? तो follicular phase आप लोग जो word use करते हैं menstrual cycle में, वो किसके साथ रिलेटेड है? ओवरियन साइकिल की यूट्राइन साइकिल? ये पॉइंट। नंबर 2,
फॉलिकुलर फेज हो गया। आप खुद बोलिए अभी ओवरी के साइकिल में सेकेंड फेज कौन सा आएगा आफ्टर ओवरियन फेज और सॉरी फॉलिकुलर फेज? अरे भाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ग्रेवियन हो गया, अभी क्या होगा? यस, ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज इज रिलेटेड विथ व्हाट? ना ओवरियन साइकिल। ओवुलेशन of secondary oocyte under the influence of which hormone? ना LH। फॉलिकुलर फेज को कंट्रोल कौन किया? FSH। मेनली LH भी कंट्रोल करता है, FSH LH बोथ। ओवुलेटरी फेज किसकी वजह से हुआ? LH। अब ओवम फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, ओवुलेशन कंप्लीट हो चुका है, ओवुलेटरी फेज कंप्लीट हो गया। थर्ड फेज क्या आएगा? वेरी गुड। थर्ड क्या हो जाएगा? लुटियल फेज। So because of the formation of what? Corpus luteum. That is why it is called as luteal phase. Luteal phase is characterized by a formation of corpus luteum, secretion of mainly progesterone, वैक्सीन कहाँ से आ गया? हाँ, मैं अपना खराब हो गया क्या? And small quantity of estrogen. Relaxin hormone प्रेग्नेंट वुमेन में सीक्रेट होता है, दैट टू बी एंड ऑफ द जेस्टेशन पीरियड। कितने बार बोला मैंने? अरे एल्बिगेंस कब होता है? डीजेनरेटेड कार्पस लुटियम की फॉर्मेशन ऑफ मतलब मैच्योर्ड कार्पस लुटियम। तो क्यों दिमाग में आ रहा है ये चीज? अभी तक तुम्हारा ब्रेन शार्प नहीं हुआ अभी तक। रिलैक्सिन ओनली सीक्रेटेड इन द प्रेग्नेंट वुमेन, दैट टू बी एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। क्योंकि रिलैक्सिन का फंक्शन क्या है? सॉफ्टनिंग ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, रिलैक्सेशन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, सो दैट पैर्चुरेशन विल बी फैसिलिटेटेड। भाई अभी तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ, पैर्चुरेशन की बात कहां से आ गया? So mainly progesterone with small quantity of estrogen. This is the three different phase comes under what? ना ovarian cycle. Clear है? अभी आते हैं uterine cycle. Uterine cycle which is occurs in uterus and controlled by estrogen and progesterone. Means ovarian hormone. इसका भी तीन फेज है। नंबर 1 बताइए यूटेरस में क्या क्या चेंजेस आएगा? आपको सब पता है, बोलिए। पहले एंडोमेट्रियम थिकेंड होगा कि पहले एंडोमेट्रियम रप्चर्ड होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल फेज। पढ़े हैं? मेंस्ट्रुअल फेज से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। तो पहले रप्चरिंग ऑफ एंडोमेट्रियम और फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। रप्चरिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, सम मेंस्ट्रुअल फेज। Menstrual phase, so rupturing of the endometrium, and gives rise to the bleeding. अब आप ओवरियन साइकिल के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप लोगों को कोरिलेट करना है। ओवरियन साइकिल के साथ यूट्रिन साइकिल को कोरिलेट करना है। मेंस्ट्रुअल फेज कंप्लीट। अब देखिए ओवरियन साइकिल का फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो चुका है। फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हुआ तो एस्ट्रोजन सिंथेसिस स्टार्ट हो गया। एस्ट्रोजन का रोल मैंने क्या बताया था एंडोक्राइन में? थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, क्योंकि रप्चरिंग ऑफ एंडोमेट्रियम ऑलरेडी कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज। अब ये रीजनरेट होगा।
regeneration, formation of the endometrium, repairing of the blood vessels, glandulated, vasculated, under the influence of which hormone? Estrogen. वहां से एस्ट्रोजन स्टार्ट हुआ. फॉलिकुलर फेज इज कोरिलेटेड विथ which phase of uterine cycle? Proliferative phase. The proliferative phase is a phase related to ovarian cycle की uterine cycle? Uterine cycle. किसके साथ कोरिलेट कर रहा है? फॉलिकुलर. कि वहां से एस्ट्रोजन होगा तब यहाँ पे प्रोलिफरेटिव होगा. So number 2, proliferative phase. Proliferation and regeneration of endometrium, thickening of endometrium, repairing of blood vessels, तो प्रोलिफरेटिव फेज में सिर्फ थिकनिंग हो रहा है कि मेंटेनिंग हो रहा है? मेंटेनिंग नहीं हो रहा है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. सब चीज को आपको नजर में रखना पड़ेगा. अभी तो प्रोलिफरेटिव फेज चालू है. प्रोलिफरेटिव इज रिलेटेड विद व्हाट ना? फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज में तो एस्ट्रोजन है बिफोर ओवुलेशन. अभी तो ओवुलेशन हुआ ही नहीं है. प्रोजेस्टेरोन कहां से आएगा? नाउ ओवुलेशन टेक्स प्लेस. आ गया कॉर्पस लुटियम. मेनली क्या सीक्रेट करेगा? Also estrogen. So progesterone will do the function of ovum and estrogen will do the function of ovum. And what is that? The progesterone will maintain the endometrium thickening and estrogen will continue to thicken. तो estrogen thicken को continue करेगा and progesterone उस thickening को maintain करेगा. So which phase comes to the number 3? बोलिए. Secretory phase. अब आप लोगों को क्लैरिटी आ गया किसके साथ क्या रिलेट कर रहा है. इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को लाइटली मत लेना. हालत खराब कर देता है इसका क्वेश्चन. सेक्रेटरी फेज, मोर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, more thickening of endometrium is under the influence of what? Estrogen. Maintaining of endometrium, forming function of progesterone. तो ये preventing the endometrium rupture or that is leads to endometrium rupture. Secretory phase क्या करता है? That leads the endometrium thickening or leads to endometrium rupturing or prevent the endometrium rupturing. Prevent lead कैसे किया? Maintain कर रहा है कि break down कर रहा है? कैसे तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि break down कर रहा है? It prevent the breakdown of endometrium by maintaining it. थोड़ा एकदम बहुत ही कैजुअल चीज तो समझ में आना चाहिए ना. कंप्लीट है. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम देखेंगे एंड बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको भी डिस्कस करेंगे. ठीक है.